हमारा चैनल जो है वो कितना हेल्पफुल रहा तुम्हारे लिए I would say कि नमस्ते फ्रॉम जर्मनी दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि एक अपने ही सब्सक्राइबर फैमिली से एक स्टूडेंट ने अपना सफ़र इंडिया से फ्राइबर्ग तक तय किया है और उसकी जर्नी हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो से जुड़े रहिए और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों हमारे साथ हैं इंडिया से एक स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग में पीएचडी इनको पोजीशन मिला है, अनमोल। और ये हाँ एक हमारे जो है सब्सक्राइबर फैमिली से हैं भाई, तो थोड़ा अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। hello Piyush, first of all thank you for inviting me here, and my name is Anmol Arya and I'm from India, Uttar Pradesh, and I did my schooling from Meerut, a small city of Uttar Pradesh, and I did my graduation, like the BSMS degree, from ISER Mohali, and after doing my graduation I applied for a PhD position at the University of Freiburg, and so here I am now. वेलकम Yeah, टू thank फ्राइबर्ग। you. एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, मतलब Educational. जो एजुकेशनल जर्नी थी वो कहाँ से रही, इंडिया से ठीक है। और मतलब किस जगह से? मेरा जो एजुकेशनल जर्नी था वो ऑब्वियसली इंडिया से ही था। सो मेरठ से मैंने अपना 10+2 किया। देन आफ्टर दैट आई ड्रॉप्ड फॉर 1 year टू Okay. प्रिपेयर फॉर IIT JEE, एंड देन आई गॉट एडमिटेड टू IISER Mohali. okay. So for last 5 years I did my BSMS there, and after that after completing my graduation I started applying for the PhD position, Okay. all over the world actually, but mostly in the Europe. And then I got the position here after applying a lot of times and all over the world, and so that's it. That's nice. I mean, at least you made it to Yeah. this PhD position. Yeah. तो हमारे व्यूवर्स को जो है आप कुछ सजेस्ट करिए कि अगर PhD पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या चीज़ें जो है कंसिडर करनी पड़ेंगी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इफ़ यू आर थिंकिंग टू अप्लाई फॉर अ पोजीशन आउटसाइड इंडिया, तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि आप अपना सबसे पहले एक टॉपिक डिसाइड कीजिए। देन and if you have decided your topic, then try to look for the institutes or the different labs that are working on that topic, and then try to make a list of the universities that are there, which under whom the labs are, and then try to look for the professors and try to read about them, read about their research work, read about what kind of work they are doing, and is it really collaborating with what exactly do you want to do, and then write a mail along with your CV, that what in the past whatever you have done with a small CV, and try to be what should I say, Precise and yeah, try to specific. be precise. Yeah, exactly. Yes. बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. अगर आप जो है स्पेसिफिकली किसी एरिया में अप्लाई कर रहे हो जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। और बाद में भी आपको अच्छा रहेगा क्योंकि पीएचडी एक कोई मतलब ऐसा नहीं है कि 1 या 2 साल का जैसे BSc या MSc की तरह है, एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। तो बेटर यही रहेगा कि उस स्पेसिफिक एरिया में अप्लाई करें जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, जहाँ पे आप अगर सालों साल भी अगर रिसर्च करें या फिर अगर उस फील्ड में काम करें तो आपको बोर न लगे, मजा आए मतलब काम करने में, क्योंकि भाई पीएचडी एक लॉन्ग जर्नी है। बिल्कुल। And sometimes it happens that you after doing a lot of work you feel like you don't have any direction, but I would say that it's all right. When you're applying for a PhD, nobody expects you that you know a lot about that subject. They expect you कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज है, and you are highly enthusiastic for that position. I would say that's it. I mean, if you're thinking to apply for a PhD, then please go ahead and apply as much as you can. I mean, it's like a probability thing. जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। Yes. And one more thing, don't go blindly. It's like don't write mails blindly. Like okay, today I'll write 100 mails to different professors. किसी एक से अब reply आएगा, but please don't do that. It will not be helpful. Even if you get that opportunity to do the interview with the professor, then you will be kind of sometimes lost. I mean, that's what. And even if you are doing this, don't address that professor with another name. अगर आपने किसी एक प्रोफेसर को ऐसे मतलब किसी और नाम से एड्रेस कर दिया
और मान लीजिए उसी इंस्टीट्यूट में आपने किसी और प्रोफेसर को अप्लाई किया, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक ही कमेटी मेंबर में होते हैं, तो वो देखेंगे कि भाई इसने तो जो है मुझे दूसरे नाम से जो है एड्रेस किया था, तो वो ऐसे बातचीत होती रहती है प्रोफेसर्स के बीच में, तो वो बैड इंप्रेशन जो है आपका क्रिएट कर सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि अगर कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो थोड़ा जो है थोड़ा दिमाग लगा के कीजिए। बट वी वुड रिकमेंड यू दैट प्लीज डोंट डू दैट, एंड बिफोर अप्लाइंग टू एनी प्रोफेसर, रीड अबाउट देयर वर्क, read what their lab is doing, and like I said, try to be more understandable about what exactly do you want to do in your PhD before applying to anybody. Okay, so अनमोल, जरा अपने व्यूवर्स को बताइए कि आपने जो है कैसे ये पीएचडी पोजीशन पाई। आप पीएचडी कर रहे हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में, तो यहाँ का पीएचडी पोजीशन कैसे मतलब मिला? So like I said, I was applying for different positions after doing my BSMS. Actually, I started before, when I was doing my masters, I started applying for the different positions. It was like like I said, I made a list of different universities. I looked for the professors under whom I wanted to do some work, or not necessarily PhD. I already tried a lot of the positions where they were asking for master's projects. Okay. Yeah. So I made a list. I looked for the professors and tried to read about their work, what exactly they are doing. And then I wrote a mail to them along with my CV, and sometimes they ask you for an SOP. Okay. Like, why do you want to join our lab, or why are you interested in that particular topic? Okay. So I wrote a CV, I wrote an SOP, and wrote a mail to the professor. So what will you recommend, let's say, or what's your suggestion for document collection? Because in my all videos for PhD, I recommend people to first collect all these documents. So what's your suggestion on this? What are the important documents for let's say applying for PhD? Okay, so the first and the foremost thing, you need your bachelor's and master's degree, and if you have done some extraordinary research work, for example some different master project, and you have got a certificate for that, please do present that in your mail. I mean, these are the while applying for PhD, I think these are the two things that you need: your degree, and one more thing, your academic transcript. Yeah. And I would say, if you want to apply for PhD, start your preparation at least 18 months before, let's say, deadline of application also, so that you will have time to collect all these documents, and you will have also time for writing your motivation letter, because that's very important. So अगला क्वेश्चन वही था एक्चुअली कि मोटिवेशन लेटर जो है वो पीएचडी एप्लीकेशन में कितना हेल्पफुल होता है या कितना इम्पोर्टेंस है उसका? Yeah, so motivation letter, I would say that in my case, when I got the PhD position here, I mean, I was not asked to write a motivation letter, but there are a lot of different positions where they will ask you to write a motivation letter. And I would say that ये actually पूरी application की जान होती है, ठीक है? Motivation letter and your CV tells you that how sincere and how enthusiastic you are about your research. कि ये आपका जो है मोटिवेशन लेटर मोटिवेशन लेटर ही नाम ही उसका मोटिवेशन, मतलब कि आपका क्या मोटिवेशन है, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन लेट्स से दैट एरिया, यू गॉट मोटिवेशन टू परस्यू इन दैट एरिया। क्योंकि जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि एक लॉन्ग जर्नी है पीएचडी, तो इतने बड़े लॉन्ग जर्नी के लिए आपको क्या चीज़ मोटिवेट करी, तो बहुत बड़ी इसमें जो है आपको मोटिवेशन लेटर में स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक लिखिए और जो रियलिटी है वो लिखिए, जेन्युइन, कॉपी पेस्ट मत करिए कहीं से, उस पर अपना टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए कि मैं क्या लिखना स्टार्ट करूं। क्योंकि जो आपको, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है आपका मोटिवेशन लेटर, वो बहुत ही जो है कैचिंग होना चाहिए कि मतलब अगला जो पढ़ रहा है वो उसको जो है और इंटरेस्ट हो कि आगे भी पढ़े, वरना जो है कुछ लाइन पढ़ने के बाद ही जो लोग जो है फिर वो पढ़ते नहीं, अच्छा ठीक है नॉर्मल टाइप का कैंडिडेट, तो आपको उस पर फोकस करना है। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा सीवी के बारे में हल्का फुल्का लिख सकते हैं उसमें, बट जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कोशिश करिए कि काफ़ी जो है
कैचिंग हो? अक्सर मतलब जब मोटिवेशन लेटर आप लिख रहे होते हो तब आपको एक्चुअली रियलाइज होता है कि आप एक्चुअल में उस सब्जेक्ट के बारे में एंथुजियास्टिक हो या फिर इज इट जस्ट अ टेम्पररी थिंग. Yes. Most of the times when you are writing it, you feel like okay, I love this subject, but then when you're writing, the first question that comes into your mind is why do I like it? And if you're able to express it in your motivation letter, then I think you're going in the right direction. But if you're when writing your motivation letter, you are still stuck with this question: why exactly do I like this topic, or why do exactly I want to pursue it as a career? So then I would say that you still have to think more on that. देन प्रोसीडिंग टू अदर क्वेश्चन, कुछ मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर करे थे कि मतलब क्या क्या चीज़ें कंसिडर किया जा सकता है पीएचडी एप्लीकेशन के लिए. तो जैसे कि हम लोगों ने कवर कर लिया सीवी, मोटिवेशन लेटर और सारे डॉक्यूमेंट्स, बट उसमें एक और भी चीज़ है, वो काइंड ऑफ कह लीजिए कि फोर्थ पिलर की तरह, रेफरेंसेस. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? They are damn important. I mean, अगर आपके गाइड या फिर प्रीवियस गाइड्स के साथ अच्छे रिलेशन हैं तो आपका आई वुड से 50% ना सही बट 35 to 40% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. बिकॉज when you are applying PhD outside, the person who is taking your interview, I mean your maybe a future guide, he will definitely ask your previous guide or your master's guide or your internship guide that what kind of person you were when you were working under him. तो अगर आपके अच्छे रिलेशंस हैं तो आई वुड से कि आप का आधा जो काम है वो हो चुका है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मतलब इंटरव्यू के टाइम में आपका 50% तो आपके पे डिपेंड करता है, बट जो अदर हाफ 50% है वो आपके रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा बिहेवियर रहा पिछले लैब में, कैसे आप कोप अप करेंगे अपने आप जो है नए जो लैबमेट्स हैं उनके साथ. तो ये सारी जानकारी जो है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे या फिर आपसे कोई लेटर नहीं मांगेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट आपके प्रोफेसर से, जो आपका सुपरवाइजर रहा है, उससे पूछेंगे कि आपका क्या बिहेवियर रहा और आपको जो मतलब काम करने का तरीका है वो कैसा है, क्योंकि वो आपके पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. और एज अ फॉरेन स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपने पहले भी बताया कि आप फॉरेन स्टूडेंट हो, तो वो क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो आपको कन्विंस करना पड़ेगा ये सारी चीज़ों के साथ. तो अगर आप किसी लैब में अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं या करने वाले हैं तो वहाँ के सुपरवाइजर से बहुत ही अच्छा रिलेशन बना के रखिए, क्योंकि रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी है. दे आर लाइक पिलर्स ऑफ योर एप्लीकेशन. I mean, we are not saying कि आप उनकी चापलूसी कीजिए, नहीं, but try to impress them by your work. Yes. तो क्या आपका सजेशन रहेगा जो पीएचडी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कि कैसे एक अच्छी पीएचडी पोजीशन मतलब पा सके? तो अगर अपनी यूपी वाली भाषा में बोले तो सिंपल सी बात है भैया, देखो अप्लाई करते रहो, ठीक है, और जम के अप्लाई करो जितना कर सकते हो, ठीक है, बट अंधाधुंध अप्लाई मत करो. मेहनत करके, जो जैसे कि हमने पहले बताया कि टाइम इन्वेस्ट करके पढ़ो, समझो, देन अप्लाई करो, लेकिन अप्लाई करते रहो. और कभी भी इस बात से निराश नहीं होना है कि मुझे 3 रिजेक्शंस मिल गए या फिर मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं. अगर इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं देन यू शुड इम्प्रोवाइज. या तो आप अपने मोटिवेशन लेटर में इम्प्रोवाइजेशन कीजिए, या फिर आप आपने जो मेल लिखा है उसमें इम्प्रोवाइजेशन कीजिए, स्ट्रैटेजी बदलिए. एंड आई थिंक पीयूष इज डूइंग अ गुड वर्क इन गाइडिंग यू गाइस. आई मीन, आई डोंट थिंक, बिकॉज आई एम वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑफ हिम and he helped me a lot actually. He didn't knew that I was a subscriber. मेरे यहाँ पर आने के बाद इनको पता लगा. But the thing is, you need not to get demotivated because you're getting rejection. Rejections are just like a staircase. You have to move up with the help of these. So please keep on applying and बस carry on करते रहिए. And I think you guys will get a position soon. Yes. हमारा चैनल जो है वो कितना हेल्पफुल रहा तुम्हारे लिए? I would say कि बहुत ज़्यादा, because see, the thing is, even after you get a PhD position, the second thing that comes into your mind is like, यार अब तो वहाँ पर जाना है, ठीक है, बिल्कुल नया देश है, ठीक है, बिल्कुल नए लोग हैं, कैसे करोगे?
तो आई वुड से कि पीयूष यू हेल्प मी अ लॉट इन दैट थिंग बिकॉज आफ्टर सीइंग हिज वीडियोस आई वाज लाइक ओके इतना मुश्किल नहीं है बाहर जाना. बिल्कुल बिल्कुल. देयर आर पीपल हु आर लिविंग एंड दे आर लिविंग देयर आई वुड नॉट से द बेस्ट लाइफ बट अ वेरी गुड लाइफ. गुड. इट्स आई मीन. But yes, I mean, his YouTube channel helped me a lot in, I would say, in getting familiarized with the culture that here we have. I mean, it is a very much different culture as compared to India. I mean, when you're going to apply for the PhD position and after getting a position, you'll realize that. Yes, and you have to be open. Yeah. And you have to be like accepting all this, let's say, changes. Yes, yes. तभी जो है आप सरवाइव कर पाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है अगर कंसिडर करेंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है. मतलब आइए अपना जो है हायर एजुकेशन लीजिए. बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. अगर आप रैंकिंग देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ की जर्मनी में, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है अंडर 100 के रैंक में मिल जाएंगे, वर्ल्ड रैंक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. अगर मान लीजिए अगर आप IIT वगैरह से इंडिया में PhD नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है ये भी काफ़ी अच्छी जगह है जी. और फॉरेन एक्सपोजर तो काफ़ी अच्छा है. I mean, it's always good to have a different experience. I mean, totally different experience of doing research. I'm not saying bad or good, but it is a totally different experience from what exactly we are doing here. So, if you're looking for a different experience, please do try for it and keep on trying. ओके, तो इसी के साथ नमस्कार.